हेलो दोस्तों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपाण स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 12 एनआईएस बोर्ड का जो है चैप्टर नंबर 15। चैप्टर 15 जो है ज्योग्राफी का है, यानी भूगोल का है, जिसमें आज हम करेंगे बायोम्स यानी जीवोम्स। जो है काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा। इसमें हम इकोसिस्टम इन्वायरमेंट के बारे में विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे और प्लांट एनिमल के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक कई मायने में हर एक क्लास के बच्चों के लिए इम्पोर्टेंट है, जिनके चैप्टर में जो है बायोम्स है, चाहे वो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो या जो भी कर रहे हो, उनके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होने वाला है। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इम्पोर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू ना जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपाण सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन आप देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। The next topic is the most important here, the Arctic tundra biomes. There is the most important, the Arctic tundra biomes. There is an important here. First point, geographical background. First of all here, geographical background. This initially is a cold desert in which is atmospheric moisture is a scarce and the summers are so short and cool that the trees are unable to survive. And these biomes are distributed along the northern edges of the northern hemisphere. It's a cover parts of Alaska and northern part of Canada. There is a coastal area of Greenland, and the Arctic is the coastal region of Russia, and the northern is the Siberia. There is important here is the globe. The here show the tundra here area. There is almost a upper side of the globes. There is an important and here show the black here, the important part, but other part is not a tundra here show in this map. The second point is important here, natural vegetation and animal life of the tundra here. There is an important question, natural vegetation and animal life here. The plant cover to the consist of the considerable mixture of species. The many of these species are derived from the such as a grasses, is a mosses and the leeches, and flowering to the herbs and the scotting of the low shrubs. And these plants is often is occur in the dense ground or hangings of agreement. The plant is a complete there is an annual cycle has stills and during their very summers, when the ground is often moisture and waterlogged because of the unequator surface as drainage. The important here, the natural vegetation and animal life of the tundras here, they're important. And the important also here, the animal of these is a biomes is maybe categorized as a resident as a migrant. Resident animal like a Perthemagans and can adjust themselves to be a changing of climatic condition. The migrated animal in the contrast began to the migrating to be warmer place in the very beginning of winter. Examples are birds such as a waterfowl, ducks and swans and geese, etc., and which live there is a place of origin in the first half of the autumns and return in there is a flowing spring or earlier summer. Mosquitoes and flies and other insects is a proliferate of the astonishing and during the short bomb season. Lining of egg that can be survived the bitter winter. Other form of animal lives are scare a few species of the mammals and freshwater fish, but almost no reptiles are amphibians here,
And beside there is the rain and the deers, wolves and fox, most ox and antics here, and the she is a lemmings and the live in this region. Productivity of tunda hares is very low. There is an important point, and here the important point also is a box. Productivity is defined as a total accumulate is the amount of energy and stored by the autographics primary producer per unit area per unit time is called productivity. You know that what is the productivity? Productivity is defined as the total accumulate amount of energy stored by the autographics primary producer and per unit area per unit time is called productivity. The reason for the low productivity are minimum sunlight and insolations and absence of scarcity of the nutrients such as nitrogen and phosphorus in the soil. The poorly developed soil, scarcities of moisture in the soil, permanently freezes ground and very short growing period. There is important here. The tunda is come alive to the dwellings their summer though is when flowering plant and support a large population of the mosquitoes and flies, which in the turn provide to the food for a large number of migrating waterfowl. There is an important point here. The next point is important here, human response. There's a human response is here, a discussion is the most important. The harsh environment support a less population. You know that the harsh environment support a less population. The tribes of the Samboids, Lepers and Finna and the Yokota, Eurasian Tunda and the Eskimos and Canada and Alaska are some of the origin inhabitation of the place and the leader nomadic life for a century. And these tribes are now leading to the permanent and nomadic life. They have adopted to new technologies. For example, deadly lives has replaced the traditional and outdated is harpoons, and thus the modern ecomos occupied and with the modern their technologies are now is the position to damage the tunda ecosystem. There is an important point here. The same way is done by the already technologically advanced man is other biomes. The Samoan and the other tribes of their Eurasians in the tundra has also adopted new way of life. Some of them are leading a permanently shuttle life. Their rear is reindeers and the fur animals is the foods, crops mainly is the wheat in a Siberian tundra. The recent discoveries of the minerals such as the gold and mineral oil in Alaska is important here. Iron's Odis and Labrador is a nickel in the Siberians have encouraged the growth of the mining settlement and development of transport facilities. But the mining activities has also led to the population and the other environmental problem to this fetus ecosystem. You know that there is the most important point here. The rent of discovered there are minerals such as gold and minerals oil is Alaska. Iron are the Labrador and nickel Siberians have encouraged the growth of the mining settlement and development of transport facility also. But mining activity has also led to the population and other environmental problem for this is a ecosystem. There is an important point here. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है अत्यंत महत्वपूर्ण पॉइंट अंटार्कटिका टुंडा जियोम्स यानी काफ़ी महत्वपूर्ण है अंटार्कटिका टुंडा बेओम जो है। अगर हम इसके पहले ही क्षेत्र की बात करें तो सबसे पहले तो यही आता है भौगोलिक पृष्ठभूमि, यानी भौगोलिक पृष्ठभूमि इसकी कैसी है तो ये जानना जरूरी होगा। यह वास्तव में एक ठंडा मरुस्थल है जिसमें जो है वायुमंडलीय नमी नग्न होती है और ग्रीष्म ऋतु में इतनी छोटी और ठंडी होती है कि वृक्ष अपने आप को बनाए रखने में असमर्थ होते हैं। यानी देखा जाए तो ये जो है ग्रीष्म ऋतु इतनी छोटी और ठंडी होती है कि वृक्ष अपने आप को बनाए रखने में असमर्थ होते हैं। और यह जीवन उत्तरी गोलार्ध से उत्तरी भागों में फैला हुआ है और इसके अंतर्गत जो है अलास्का के कुछ भाग भी इसके अंतर्गत आता है और कनाडा के उत्तरी भाग,
ग्रीनलैंड और तटवर्तीय भाग और रूस के जो है अंटार्कटिका समुद्री तटीय क्षेत्र उत्तरी साइबेरिया सम्मिलित है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगर इसी बात को हम अगर मैप में देखें तो ये साफ करता है कि देखिए मैप में भी अगर आप देखिएगा तो जो ऊपर साइड में ही आपको ये नज़र आ रहा होगा कि टुंड्रा जो वन क्षेत्र बायोम है वो ऊपरी क्षेत्र में ही दिख रहा है। जो काले काले से जो आपको धब्बे दिख रहे होंगे उस क्षेत्र को जो है दर्शा रहा है। लेकिन बाकी जो मेन राज्य हैं, देश है, उसमें कहीं भी आपको जो है इस क्षेत्र जैसे नई विषमताएँ दिखने को मिल रहा है। तो ये मैप भी जो है हमारा ग्लोब जो है बहुत कुछ समझा रहा है, क्योंकि ये जो है ऊपरी क्षेत्र में ही पाया जाता है। और देखा जाए तो यहाँ पर आबादी जो है बहुत ही कम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण जो है ये ग्लोब्स है। उसके पश्चात आता है दूसरा पॉइंट, प्राकृतिक वनस्पति तथा प्राणी जीवन। देखिए प्राकृतिक वनस्पति तथा प्राणी जीवन का यहाँ पर क्या आधार है, तो ये जानना काफ़ी दिलचस्प रहेगा। कहते हैं यहाँ के जो है पौधे के आवरण में इसकी बहुत सी प्रजातियाँ का मिश्रण सम्मिलित होती है और इसमें बहुत सी प्रजातियाँ बौने आकार की होती है। यानी इनमें बहुत सी प्रजातियाँ जो होती है बौने आकार की होती है, जैसे घास, मांस, लीचेन, फूलदार औषधि वनस्पति और जहाँ तहाँ फैली हुई छोटी झाड़ियाँ। तो समझ गए कितना महत्वपूर्ण यहाँ पर आता है कि इसमें से बहुत सी प्रजातियाँ बौने आकार की होती है, जैसे घास, मांस, लीचिन, फूलदार औषधि वनस्पति और जहाँ तहाँ फैला हुआ छोटे छोटे झाड़ियाँ। ये सभी पौधे जो है सघन रूप से धरातल को ढके रहते हैं। यानी ये सभी पौधे जो है सघन रूप से धरातल को ढके रहते हैं। छोटी सी ग्रीष्म ऋतु में ये पौधे अपने वार्षिक चक्र को जल्दी से पूरा कर लेते हैं। यानी छोटी सी ग्रीष्म ऋतु में ये पौधे जो है अपने वार्षिक चक्र को जल्दी से पूरा कर लेते हैं। और इस छोटी सी ग्रीष्म ऋतु में धरातल अक्सर नमी युक्त तथा जलाकांत्र होते हैं, क्योंकि धरातलीय अफवाह ठीक नहीं होती है यहाँ पर। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है कि इस छोटी सी ग्रीष्म ऋतु में धरातल अक्सर नमी युक्त तथा जो है जलाकांत होती है, क्योंकि धरातलीय अफवाह ठीक से यहाँ पर नहीं हो पाता है। इस जीवोम में जो है पशुओं के दो वर्गों में वर्गीकृत किया जा सकता है। यानी इस जो है जीवोम में पशुओं को दो भागों में वर्गीकृत किया गया है। एक जो है आवासी, एक है प्रवासी। तो ये आवासी और प्रवासी काफ़ी महत्वपूर्ण रखता है। आवासी जैसे है टर्गिमन बदलती हुई जलवायविक दशाओं के अनुरूप अपने आप को ढाल सकते हैं। यानी आवासी जैसे टर्गिमन बदलती हुई जलवायविक दशाओं के अनुरूप अपने आप को ढाल सकते हैं। और इसके विपरीत जो है प्रआवासी जो है जीव शीत ऋतु आरंभ होते ही गर्म स्थानों की ओर चले जाते हैं। यानी इसके विपरीत अप्रवासी जीव जो है शीत ऋतु आरंभ होते ही गर्म स्थानों की ओर चले जाते हैं। उदाहरण के लिए पक्षी जैसे जो है गुदगावी, बत्तख, हंस, गीज आदि को जो है शरद ऋतु के आरंभ में ही अपने मूल स्थान को छोड़कर चले जाते हैं। यानी अपने मूल स्थानों को छोड़कर चले जाते हैं तथा अगले बसंत अथवा जो है ग्रीष्म ऋतु के आरंभ में लौट आते हैं। तो कहते हैं कि जीव जंतु भी कहते हैं समय के अनुसार अपने आप को ढालना जानते हैं और इसलिए जो है ये प्रवासी हो जाते हैं। यानी इस क्षेत्र को छोड़ के जो है जिस क्षेत्र में उनको अच्छा महसूस होता है उस क्षेत्र में वो चले जाते हैं। मच्छर, मक्खियाँ तथा अन्य कीट पतंग की जो है छोटी सी गर्म ऋतु में बहुत अधिक संख्या में उत्पन्न हो जाते हैं। तो इसमें कोई दो राय नहीं है। आपने देखा होगा कि गर्म ऋतु जैसे ही हम गर्म ऋतु आती है, गर्मी आती है, मच्छर और मक्खियाँ जो है अन्य कीट पतंगे छोटी सी गर्म ऋतु में अधिक संख्या में उत्पन्न होने लग जाते हैं। ठीक है, तथा अंडे देते हैं और जो कठोर शीत ऋतु में भी जीवित रह सकते हैं। अन्य प्रकार के जीवों की यह कमी जो है होती है। स्तनधारी जीवों की कुछ प्रजातियों और जो है मीठे जल की मछलियां भी पाए जाते हैं इन क्षेत्रों में, जो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं अतिरिक्त यहाँ पर रेंगने वाले जीव अथवा उभयचर बिल्कुल नहीं पाए जाते हैं। यानी रेंगने वाला जीव जो है जैसे आप कह सकते हो यहाँ छिपकली जो है नहीं पाया जाता है और उभयचर यानी रात्रि वाला जीव भी यहाँ पर पाया नहीं जाता है। इसके अतिरिक्त देखा जाए तो रेडियर्स, भेड़िया, लोमड़ी, कस्तूरी बैल, अंटार्कटिका खरगोश और सील तथा जो है लेमिंग आदि जानवर भी यहाँ रहते हैं। और कहते हैं टुंड्रा जियोम्स में उत्पादक बहुत ही कम है। यानी बहुत महत्वपूर्ण बात आता है कि टुंड्रा जियोम्स में जो है उत्पादकता बहुत ही कम देखने को मिलता है।
यदि इसी पॉइंट को हम अगर जानने की कोशिश करें जो कि बॉक्स में है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण है, कहते हैं स्वयं पोषी प्राथमिक उत्पादों द्वारा प्रति यूनिट क्षेत्र और प्रति यूनिट समय में जमा की गई कुल ऊर्जा की मात्रा को उत्पादकता कहते हैं। यानी स्वयं पोषी प्राथमिक उत्पादकों द्वारा प्रति यूनिट क्षेत्र के प्रति यूनिट समय में जमा की गई कुल ऊर्जा की मात्रा को उत्पादकता कहते हैं। तो काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं निम्न उत्पादकता के कारण क्या है? कहते हैं निम्न उत्पादकता के कारण ये बनते हैं कि न्यूनतम सूर्य प्रकाश की सूर्यताप, यानी न्यूनतम सूर्य प्रकाश और सूर्यताप, भूमि में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण है इन क्षेत्रों के लिए कि भूमि में पोषक तत्व जैसे नाइट्रोजन और फास्फोरस की कमी अथवा बिल्कुल ही न होना। तीसरी बात आती है कि कम विकसित जो है मिट्टी पाई जाती है, यानी कम विकसित मिट्टी होती है और मिट्टी में नमी की कमी भी होती है। यानी मृदा में देखा जाए तो नमी की कमी होती है, ठीक है। तो मिट्टी में कमी की मात्रा देखी जा सकती है। धरातल के स्थायी रूप से बर्फ से ढके रहना, यानी धरातल जो होती है हमेशा ही अस्थायी रूप से बर्फ से ढका रहता है। अगर ये बर्फ से ढका रहेगा तो इसमें कोई भी क्रिया होना संभव नहीं है। और बहुत छोटा वर्धन काल होता है, यानी यहाँ देखा जाए तो समय काल जो होता है बहुत ही छोटा होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट बात आती है। कहते हैं ग्रीष्म ऋतु में बर्फ को पिघलते ही टुंडा में जीवन फिर लौट आती है। लेकिन ग्रीष्म ऋतु में जब बर्फ पिघलते हैं तो सारे जीव जंतु जो है दोबारा इस क्षेत्र में लौट आते हैं और इस समय फूलों वाले पौधे, मच्छरों और मक्खियों की बहुत बड़ी संख्या को आश्रय देते हैं और बदले में ये बहुत बड़ी संख्या में अप्रवासी घरवालियों को भोजन भी प्रदान करते हैं, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण बात यहाँ आता है। उसके पश्चात आता है मानवीय अनुक्रियाएं। देखिए मानवीय अनुक्रियाएं काफ़ी महत्वपूर्ण है। कहते हैं यहाँ के कठोर वातावरण में बहुत ही कम लोग रहते हैं, यानी यहाँ के कठोर वातावरण में बहुत ही कम लोग रहते हैं, यानी इंसान वहाँ पर बहुत ही नाम मात्र है। तो इसका मतलब है कि यहाँ की प्राकृतिक वनस्पति के साथ जो है इंसान कम छेड़छाड़ करता होगा। तो ये जनरल सी बात है, जब यहाँ पर उनकी लाइक कंडीशन नहीं है तो यहाँ पर जो है प्राकृतिक संतुलन बना ही रहेगा। कहते यूरेशिया टुंडा में लैस फिश और याकुती जनजाति तथा कनाडा और अलास्का के एस्किमो लोग यहाँ मूल निवासी है। तो यहाँ पर देखा जाए तो जनजाति रहती है और सदियों से जो है चलवासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। चलवासी जीवन का मतलब होता है कि वो एक जगह नहीं ठहरते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। तो जैसे पक्षी माइग्रेट करते वैसे इंसान भी यहाँ पर चलवासी ही होते हैं, माइग्रेट टाइप के होते हैं। ये जातियाँ अब अस्थायी अथवा अर्धचलवासी जीवन व्यतीत कर रहे हैं, लेकिन अब जो है काफ़ी समय बीत गया है, तब ये जो लोग हैं उस क्षेत्र में अस्थायी रूप से या अर्धचलवासी यानी बहुत ही कम जो है यहाँ से वहाँ ट्रैवल करते हैं। उन्होंने नई तकनीकों का अपना लिया है। उदाहरण के लिए जो घातक राइफलों ने परंपरागत और पुराने हारमून का जो स्थान ले लिया है, अंततः नवीनतम तकनीक से लैस आधुनिक जो है सिलकामो आज टुंडा पारितंत्र को नष्ट करने के लिए उसी स्थिति में है जिससे तकनीकी रूप से विकसित मानव ने अन्य व्योम्स में किया है। देखिए कहते हैं इंसान कभी सुधरने वाला तो है नहीं। कहते हैं आदिवासी ने अपना जीवन वहाँ पर स्थायी रूप से बना लिया है और आजकल जो है जनजातियों ने जो है वहाँ की जीवन शैली, वहाँ के पेड़ पौधों को बिल्कुल ही नष्ट तहस नहस कर दिया है, जैसे बाकी क्षेत्र में हुआ। तो कहते हैं जितने टेक्नोलॉजी की आड़ में ये आगे बढ़ते जाएंगे इंसान, उतना जो है प्राकृतिक को ये नष्ट करते रहेंगे। जैसे टुंडा के मिलों में से अन्य जातियों ने नई जीवन शैली अपना लिया है और इसमें से कुछ अस्थायी रूप से एक स्थान पर अब रह रहे हैं और रह रहे हैं तो यहाँ के जो है प्राकृतिक जीवन को नष्ट भी कर रहे हैं। ये जो है रेडियर और जो है फर वाले अन्य जानवर भी पालते हैं। जो फर वाले जानवर होते हैं उसको पालते हैं और साइबेरियन टुंडा में जो है खाद्य फसलों में मुख्य गेहूं की खेती की जा रही है। हाल के वर्षों में खनिज की खोज जैसे अलास्का में सोना और खनिज तेल और जो है लेब्राडोर में लोहा अयस्क, साइबेरिया में निकेल्स ने जो है खनन वस्तु की स्थापना भी बेखूबी किया है। और कहते हैं यहाँ पर यातायात के साधनों के विकास को भी काफ़ी प्रोत्साहन किया है, परंतु खनन प्रक्रिया में यहाँ प्रदूषण तथा इस कमजोर पारितंत्र के अन्य पर्यावरण पर समस्याएं पैदा कर दी है। तो कहते हैं इंसान किसी भी क्षेत्र को छोड़ने वाला नहीं है, चाहे वो बर्फीला क्षेत्र हो, चाहे वहाँ पर कम आबादी रहती हो। इंसानों ने हर क्षेत्र में अपना प्रभुता साबित किया है, लेकिन यहाँ पर जो है जीवन जंतु के लिए बिल्कुल ही पर्यावरण को रहने नहीं दिया है। कहते हैं ये सारे हमने पढ़ने के बाद एक बात तो साफ हो गया कि इंसान जो है अपना जीवन स्वयं ही नष्ट करने पे लगा हुआ है। कहते हैं ऐसा कोई भी क्षेत्र नहीं है
जहाँ इंसान की दबदबा नहीं है और इंसान ने उस चीज़ को जो है समस्या कमज़ोर, पारितंत्र को कमज़ोर कर दिया है। तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर था जिसमें हमने हर एक पहलू पर, हर एक क्षेत्र के विषय में विस्तार पूर्वक जानने की कोशिश किया और देखा कि मानव कितने ही जो है बेवकूफ़ी वाले कार्य कर रहे हैं, जिससे जो है आने वाला समय में पर्यावरण जो है बिल्कुल ही नष्ट हो जाएगा। और जब पर्यावरण नष्ट होगा तो इंसान के अस्तित्व भी खत्म हो जाएगा। दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण चैप्टर था जिसको आपको समझना चाहिए और ये आपके अगर सिलेबस में है, और कहते हैं बेखूबी हर एक क्लास के बच्चों में ये सिलेबस रहता ही रहता है। तो ये आपको इतना होना चाहिए कि जितना हो सके इस वीडियो को हर एक बच्चे के साथ शेयर करना चाहिए। जिनके कहते हैं जिनके पास है टुंडा वनस्पति तो हर जगह पाया जाता है, ठीक है। एसएसटी के बुक में भी आपको मिलेगा, ठीक है। तो ये हर एक क्लास के लिए इंपॉर्टेंट ये टॉपिक था। तो जितना हो सके इस वीडियो को जो है दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, जिससे वो भी इस वीडियो का फ़ायदा उठा सके। और इसके लिए आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ इतना सा करना है कि आपने इस वीडियो को देखा, आपको वहाँ पर शेयर का बटन दिख रहा होगा यूट्यूब पे, तो शेयर को दबाइए, वहाँ पर उससे जाके व्हाट्सएप पे जो है कुछ समय के लिए लगा दीजिए। जो बच्चे को देखना होगा, जो बच्चों को समझना होगा वो समझ लेंगे, जिनको नहीं समझना होगा वो इग्नोर कर देंगे। आपने अपना कार्य कर दिया, मैंने अपना कार्य कर दिया, बाकी देखने वाले देखे चाहे ना देखे उनकी अपनी प्रॉब्लम है, ठीक है। और जितना अगर पहली बार वीडियो देख रहे थे तो चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ पर हर क्लास के लिए वीडियो बनाई जाती है, तो ये आपके लिए फ़ायदे में रहोगे, ठीक है। कहते हैं 8 क्लास से लेके यहाँ पर जो है MA के बच्चों के लिए हर एक वीडियो उपलब्ध है। और ये आपको यूट्यूब पर रिसर्च करने से नहीं आएगा। अगर कोई टॉपिक यूट्यूब पर रिसर्च करोगे तो त्रिपाण सेंटर का जो है बनाया हुआ वीडियो नहीं आएगा, ठीक है, क्योंकि पहले से जो वीडियो उपलब्ध है वही आता है। तो इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना बहुत ज़रूरी होता है। चैनल सब्सक्राइब करके रखिएगा तो वहाँ पर जो है आपको होम पेज मिल जाएगा, जहाँ पर वीडियो लिखा है उस पर दबाइएगा और जो रिसेंटली वीडियो डली है उस पर देखिए। जो आपके सिलेबस में है उस वीडियो को सेव कीजिए और जो है अच्छे अंक प्राप्त कीजिए।